मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। शिक्षा का काशी बन गया है। अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। Hello everyone, welcome to Topper's Diary, a podcast where we bring you real stories, real journeys and real strategies of the students who made it to the top. In today's episode of Topper's Diary, हम लेकर आए एक special guest who is not just a topper but also an upcoming writer and a poet. उनकी राइटिंग स्किल्स एंड एक्सप्रेशंस ने हमें इतना इम्प्रेस किया, हमें इतना ट्रूली इम्प्रेस किया, एंड दैट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स इन हर परफॉर्मेंस एज वेल. She scored 93.4% in her class 10th board examination, which is an outstanding performance. And her name is Seher Nebnari. So Seher, how would you introduce yourself as a writer? Okay, so well, it's an honor to be present here. I would like to say that it's an opportunity to be speaking about myself. So yeah, if I were to describe myself as a writer, I would say that I would write in my genre. My favorite genre is crime and thriller. So I would like to be known by that genre. Like, she writes so good books in that. I never see the plot twist coming and something just like that. So yeah, I would be doing it. So you have received appreciation for both your marks and your writing skills. So आपको किस चीज़ से ज़्यादा satisfaction मिलता है? मतलब मार्क्स से recognition ज़्यादा पसंद आता है या when you're being called a writer उससे आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? वैसे कहूँ तो दोनों से अप्रिसिएशन अच्छा लगता है कि आपको दोनों चीज़ों के लिए अप्रिसिएट किया जा रहा है, आपको लोग अच्छा बोल रहे हैं. बट इफ़ आई वुड टू चूज़ वन थिंग, मैं बोलूँगी राइटिंग. क्योंकि क्या होता है कि जो कला होती है वो कोई सिखाता नहीं है, वो हम खुद सीखते हैं. हम दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, एंड लाइक समथिंग जस्ट स्पार्क्स इनसाइड यू. यू नो ये चीज़ मेरे लिए बनी है, ये मुझे करनी है. तो ये मैं बोलूँगी कि पढ़ाई तो कोई भी सीख लेता है, पढ़ाई करना, कोई डेडिकेटेड अच्छा बच्चा जो है उसका कोई दिमाग में कोई गोल है वो कर सकता है. बट कला जो होती है वो हर एक इंसान के लिए अपनी अपनी होती है. मेरी कला मेरे लिए है, तो आई वुड लव इफ आई एम बीइंग रेफर्ड एज अ राइटर, एक कलाकार, एक पोएट. सो या आई फील ऑनर इन दैट. सो राइटिंग में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? मतलब यू कॉन्शियसली बिल्ड दैट और इट केम आउट नेचुरली? I would say that it not happened naturally. Like, it started like as a situation was there, and I was back in 8th grade. Librarian was distributing his books. I got Jane Eyre, and then I was not interested in reading at all. I started flipping through the pages, and as I read one, I was so engrossed in it. I liked the book, and then I started reading one book, another book, and then I was like, this thing is made for me. I love writing so much. I grabbed my pens, I wrote and wrote. Sometimes they were bad days, sometimes I was not good at writing, but yeah, the journey started back there. So you started with a little bit of reading also. So can you name your favorite authors or the genres that you have started so I would much? like to say that Holly Jackson is a good writer. She writes good thriller and something. I love her books. She's a good writer. And my reading journey personally started with classics. So I would say that people should also read classics because they have like really deep messages and the prose is also kind of good. So yeah, people should also read classics. Okay, nice. Were you always confident in writing? No. या बीच में कभी फेलियर्स भी आए, और अगर फेलियर्स आए थे तो हाउ डिड यू डील विद देम? ऐसे कोई सी भी जर्नी स्टार्ट होती है, कोई भी कंप्लीटली श्योर नहीं होता कि मुझे क्या करना है. और मैंने भी रैंडमली बस एक पेज उठा के लिखना शुरू किया था, एंड इट वाज नॉट द बेस्ट. तो उसी तरीके से मैं अगर इस स्टोरी को रिलेट करूँ, तो मैं जब 8th क्लास में थी, तो लाइक मैं 6th में थी जैसे कि बेसिकली, सॉरी. तो उसमें क्या हुआ था, हमारे टीचर्स ने बोला था डिबेट कॉम्पिटिशन होने वाला है, एंड आई वाज लाइक मुझे पार्ट लेना है कि यार मुझे कुछ करना है. आई वॉन्ट टू बी लाइक, मुझे स्टेज पर खड़ा होना है, मुझे पोडियम पर बोलना है, एंड आई वॉन्ट पावर टू बी माई हैंड एंड फॉर एक बस 2 मिनट के लिए सही, बट आई वांट टू डू समथिंग ग्रेट. तो मैंने भी सोचा मैं पार्ट लेती हूँ. आई रोट अ स्क्रिप्ट, मैं टीचर के पास गई, और मैं बहुत हाफ रही थी, मैं बहुत नर्वस थी, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस थी, एंड नोटिस दिस. तो उन्होंने बोला कि हम आपको सिलेक्ट नहीं कर सकते, सॉरी, आप नेक्स्ट साल ट्राई करना. फिर मैं नेक्स्ट साल भी गई, और फिर उसके बाद मैं सिलेक्टेड हो गई.
मैंने बोला स्टेज पे एंड इट वॉज रियली हॉरिबल। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मुझे खुद को भी रियलाइजेशन हो गया था उसका। फिर आई वॉज लाइक, मैंने इसमें बिल्कुल होप छोड़ दी कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, मैं नहीं कर सकती ये चीज़। एंड मेरी मम्मी ऑन द अदर हैंड वॉज लाइक, नहीं यार तू कर लेगी यार, जिंदगी में हार जीत तो चलती रहती है, एंड लाइक अगर तुझे पसंद है तो तू करना चाहिए, ऐसे गिव अप मत कर। तो आई वॉज लाइक ठीक है, आपकी बात मान लेती हूँ, कर लेती हूँ मैं। तो फिर मैं गई, मैंने पूरी स्पीच प्रिपेयर करी एंड जैसे मैंने याद करके टीचर के सामने बोलना शुरू किया, आई डोंट नो बट शी वाज सो इम्प्रेस। उन्होंने पूरी क्लास के बच्चों को खड़ा करा, मेरे तालियां बजाई एंड देन आई फेल्ट कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, शायद ये चीज़ शायद मेरे लिए बनी हुई है। ठीक है, तो फिर व्हेन द डे ऑफ कॉम्पिटिशन के, मैं बहुत नर्वस थी उस दिन भी, बट आई न्यू कि मुझे अपना बेस्ट करना है, जो होगा वो देखा जाएगा, एंड आई गिव माई बेस्ट एंड दैट इट वॉज नॉट प्रेडिक्टेबल बट आई स्टूड फर्स्ट। सो yeah, that was some kind of something, that situation in my life when I overcome my fear. So you won prizes in debate competitions later on, and you worked upon your confidence. That's great. But have you ever achieved something in writing? Were there any writing competitions, or did you publish any of your writings in your school magazines or anywhere where you got a chance? हाँ, बेसिकली मेरी मोटिवेशन का सोर्स मेरी मम्मी से ही रहा है, एंड मैं उन सिर्फ सोनली उन पर डिपेंड किया है, मेरी टीचर्स पे भी डिपेंड किया है। दे ऑलवेज सॉ द ब्राइट साइड इन मी, मुझे इंकरेज करते थे, मुझे आगे के पुश करते थे। आई वाज अ रियली इंट्रोवर्टेड किड, मुझे खुद के लिए स्टूड अप करना, अपने लिए बोलना बिल्कुल नहीं आता था। तो मुझे इंकरेज करते कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, यू आर रियली गुड राइटर, तुम अच्छा स्कोर कर लेती हो, तो व्हाई डोंट यू राइट फॉर मैगजीन्स? आई वाज लाइक ओके, आई वुड गिव इट अ शॉट। सो देन आई स्टार्टेड राइटिंग, आई मेड अप अ पोम एंड देन इट वाज काइंड ऑफ गुड, आई डिडंट एक्सपेक्टेड इट। सो देन इट गॉट published and it was good. Then I started writing myself. I was like, I have to do this thing. So in 9th and 10th also, I published my poetries in our school magazine. So your mother played an important role behind it, right? वैसे अब कोटा में you must be aware of that fact. कोटा में बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, because कोटा is the IIT hub of India, right? और बहुत सारे बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पे, उनका ध्यान रखते हैं, उनको पूरा सपोर्ट करते हैं. So how do you take this thing? I mean, आई थिंक इट्स अ रियली पॉजिटिव थिंग इफ योर पेरेंट्स, अगर आपका पेरेंट्स का सपोर्ट होता है ना, तो आप इमोशनली भी आप बच्चा बैलेंस रहता है। उनको पता है कि यार इफ़ आई रूइन समथिंग, मेरे पेरेंट्स हैं, और अगर मुझे लगता है कि हाँ मेरे फ्रेंड्स भी हैं, वो भी उनके पेरेंट्स, उनको लाइक दे आर वेरी सपोर्टेड। वो बोलते हैं बेटा तुमसे नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुम जितना हो नहीं हो तुम मुझे छोड़ के आ सकते हो। तो पेरेंट्स का अपने बच्चे में भी ट्रस्ट होना चाहिए, बच्चों को भी खुद पे होना चाहिए कि यार मैं कर सकती हूँ। तो मैं बोलूँगी एक तो पेरेंट्स का सपोर्ट इज़ रियली गुड, क्योंकि आप मॉनिटर कर सकते हैं, दे विल मेक श्योर कि आप ज़्यादा आपका स्क्रीन टाइम पे नहीं है, आपका आप सोशल गैदरिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, आप कोई बैड कम्युनिटी में नहीं है, आपका फ्रेंड जोन अच्छा है। तो हाँ, पेरेंट्स का सुपरविजन इज़ रियली नेसेसरी आई वुड से। और अगर रह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वो बच्चे भी खुद का सेल्फ कंट्रोल सीख सकते हैं, आए हैं नई जगह तो नए एक्सपीरियंस भी मिलेंगे। So yeah, self-control is one thing that everyone must know. but when monitoring is there, extra kind of support is there, no? Motivation is also there and monitoring is also there, and definitely screen time से तो आपको definitely काफी control Yes, में we should. रहता है वो चीज़, right? So now we have a very small rapid fire round, okay? जिसमें से आपको फटाफट से select करना है. The first is, would you prefer late night book reading or Netflix? Late night book reading. And why is that so? I think Netflix can also be, but late night book reading, because no, there's silence in the house, no one is there to disturb you, and you can just simply lay back in a chair, read, and it can be really Dive cozy. deeper into the thoughts of the writer, Yes. right? Are you a night owl or an early bird? Definitely an early bird. I get so dizzy by night. I can even like read anything or do any kind of work. So yeah, I love waking early in the morning and start my work by then only. Okay. One habit that made the biggest difference in your preparation? One habit, I would say that I was consistent and I was disciplined, and I knew that I have to do this, and I was like really disciplined, like no, I have to do this. So yeah, that was good. I think. Okay, scrolling or outing with friends? Outing with friends, I would say it's much better to be with friends and have fun than scrolling on and doom scrolling. I don't believe it's like kind of good thing. Okay. If you become a successful writer, what will be your pen name? Okay, so I have not given a much thought about it, but I think Ladybird would be. I watched a movie, it was kind of called Ladybird, so I got kind of inspired by it, and I think if I were to give myself a pen name, it would be Ladybird. Okay, that's pretty nice. And I really wish that you excel in both of the things that you want to do professionally and passionately. So it was really nice talking to you, Seher. So with this, we have come to the end of the episode. अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में
एक अलग कहानी, एक अलग पहचान के साथ। दिस इज टॉपर्स डायरी एंड दिस इज जस्ट द